Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mariam Zafar and on behalf of AFAQ online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. آج کی اس ویڈیو میں ہم آفاق سن سیریز معلومات عامہ جماعت اول کا یونٹ 2 پڑھیں گے. لیکن ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو سے جو لوگ استفادہ کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں طلبہ، اساتذہ اور والدین. ایسی کون سی چیز ہے جو آفاق کو منفرد بناتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس لیے آفاق نے سالانہ اکیڈیمک کیلنڈر ترتیب دیے ہیں جو کہ 3 ٹرمز پر مشتمل ہیں اور ہر ٹرم آگے سے 2 یونٹ پر مشتمل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر یونٹ 6 ہفتوں پر تقسیم کیا گیا ہے. پہلے 5 ہفتوں میں ٹیچنگ اور لرننگ کو فوکس کیا جاتا ہے جبکہ چھٹے ہفتے میں اسیسمنٹ لی جاتی ہے. صرف یہی نہیں، آفاق آپ کو سبجیکٹ ویٹیج کے اکارڈنگ سجسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی مہیا کرتا ہے جس میں جنرل نالج کے 3 پیریڈ دیے گئے ہیں. اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کرام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے اپنے اکارڈنگلی چینج بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم ٹرم 1 یونٹ 2 کا آغاز کریں گے جو 3 اسباق پر مشتمل ہے. سبق 3 خود کو صاف ستھرا رکھنا، سبق 4 میرا خاندان اور میرے دوست، سبق 5 کھیل اور اصول. یہاں سے ہمارا ہفتہ 1 شروع ہوگا. یہ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 ہے جو کہ 3 لیسن پلانز پر مشتمل ہے اور ہر لیسن پلان میں ہم 2 SLOs کو کور کریں گے. جی تو یہاں پر ہمارے 3 لیسن پلانز دیے گئے ہیں اور اس میں تمام میتھڈولوجی بتا دی گئی ہے جس سے اساتذہ کرام مستفید ہو سکتے ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان طریقوں کی نشاندہی کر سکے جن کے ذریعے سے وہ خود کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. بیت الخلاء کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کو دھونا، ناخن تراشنا، دانتوں کی صفائی کرنا اور نہانا وغیرہ. صحت مند رہنے کے لیے خود کو، اپنے کپڑوں کو اور گرد و نواح کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت پہچان سکے. ان SLOs کو کور کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ لیسن پلان دیا گیا ہے اور اس میں تمام میتھڈولوجی بتا دی گئی ہے. آئیے یہاں سے سبق 3 کا آغاز کرتے ہیں. سبق 3 کا عنوان ہے خود کو صاف ستھرا رکھنا اور اس میں ہم 4 SLOs کور کریں گے. جی تو تصورات اور سرگرمیاں سب کی منصوبہ نمبر 1. یہاں پہ ہمیں ایک تحریکی سرگرمی دی گئی ہے. دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ان چیزوں کے گرد دائرہ لگائیں جو آپ خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس تو جلدی سے اس سرگرمی کو مکمل کیجیے اور واپس آئیے. جی تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر 16 اور یہاں پہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. جیسے کہ پہلی تصویر میں آپ دیکھیں کہ دانت صاف کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، دوسری تصویر میں ہاتھ دھونا، تیسری میں نہانا اور چوتھی میں ناخن تراشنا. تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی تو یہاں پہ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ آ گئی ہے جس میں دانت صاف کرنے کے کچھ مراحل بتائے گئے ہیں اور ان مراحل کو آپ نے نمبر لگا کے ترتیب دینی ہے. تو جلدی سے اس ورک شیٹ کو سولو کیجیے اور واپس آئیے. جی تو یہاں پہ ہمارا نیکسٹ لیسن پلان آ رہا ہے. تو ان حاصلات تعلم کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو تمام میتھڈولوجی اس لیسن پلان میں دے دی گئی ہے جو کہ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 سب کی منصوبہ نمبر 2 ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے تصورات اور سرگرمیاں آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کون سی سرگرمی ہے. یہ مرحلہ وار ہاتھ دھونے کے طریقے کا عملی مظاہرہ. جی بلال اپنے ہاتھ دھونے کے لیے درجہ ذیل طریقوں پر عمل کرتا ہے. وہ کیا طریقے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ گیلے کرنا، صابن لگانا، ہاتھ کو ملنا، پانی سے ہاتھ دھونا. یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر دیے گئے ہیں. جی تو آگے بڑھتے ہیں ہم. یہاں پر فلیش کارڈ دیے گئے ہاتھ دھونے کے، ان کو دیکھیے اور پھر واپس آئیے. یہاں پر ایک نئی سرگرمی دی گئی ہے، ہاتھ دھونے اور دانت صاف کرنے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ. جی یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر دی گئی ہے. ہاتھ دھونے اور دانت صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، عملی مظاہرہ کریں. تو آپ اس کا عملی مظاہرہ کریں اور واپس آئیے. ان SLOs کو کور کرنے کے لیے تمام میتھڈولوجی اس لیسن پلان میں دی گئی ہے جو کہ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 سب کی منصوبہ نمبر 3 ہے. آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں. جی اپنے کپڑوں اور ارد گرد کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. جی یہاں پر سرگرمی آ رہی ہے کمرہ جماعت میں صفائی کا دن. اس میں دیکھتے ہیں کمرہ جماعت میں صفائی کا دن منائیں. صفائی کا دن مناتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ آپ اپنی جگہ، کرسی، میز اور دوسری جگہوں کو کس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں.
आगे बढ़ते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हफ़्ता 1 का अहतमाम हुआ और अब हम हफ़्ता 2 का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे टर्म 1 यूनिट 2 हफ़्ता 2 के कुछ लेसन प्लान्स दिए गए हैं और हर लेसन प्लान में हम 2-2 SLOs को कवर करेंगे। यहाँ पे ये 3 SLOs लेसन प्लान्स आपको दे दिए गए हैं और इनमें तमाम मेथडोलॉजी भी मौजूद है। इन SLOs को कवर करने के लिए आपको तमाम मेथडोलॉजी इस लेसन प्लान में दे दी गई है, जो कि टर्म 1 यूनिट 2 हफ़्ता 2 और सबकी मंसूबा नंबर 1 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी सरगर्मी आ रही है। जी, तो गंदगी से जरासीम फैलते हैं जो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का बाइस बनते हैं। सरगर्मी, आइए जायज़ा लेते हैं। तस्वीरों को देखते हुए लिखें कि ये अच्छी आदतें हैं या बुरी। जी, तो जल्दी से इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। सेहत और सफाई के बारे में 2 से 3 जुमले लिखें। अपना पैगाम वाज़िया करने के लिए तस्वीर भी बनाएं। इस पैगाम के बारे में अपने घर वालों को बताएं। तो जल्दी से इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। तो इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ख़ानदान के कुछ अफराद, वालिदैन, बहनों, भाइयों, दादा दादी, चचा चची, चचाजाद और मामूजाद वगैरह को पहचान सकें, जान सके कि ख़ानदान के तमाम अफराद और दोस्तों का एहतराम करना चाहिए। इन SLOs को कवर करने के लिए उस्ताद कराम को तमाम मेथडोलॉजी लेसन प्लान में बता दी गई है, जो कि टर्म 1 यूनिट 2 हफ़्ता 2 सबकी मंसूबा नंबर 2 में दे दी गई है। जी, तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। आइए सबक नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। तो सबक 4 का उन्वान है मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त, और इस सबक में हम 4 SLOs को कवर करेंगे। तहरीकी सरगर्मी दी गई है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। अहमद के ख़ानदान वालों की तस्वीरें देखें और दी हुई जगहों में इसके ख़ानदान के बारे में बताएं। अहमद के ख़ानदान में कुल कितने लोग हैं? यहाँ से देखें कि दादी, दादा, अम्मी, भाई, अहमद, उसकी बहन और अब्बू। यहाँ से आपने काउंट करना है कि कुल कितने लोग हैं ख़ानदान में, और उसका जवाब आपने इस लाइन में लिखना है। उसके बाद अहमद के ख़ानदान में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनके नाम लिखें। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि भाई, बहन, अब्बू, अम्मी, दादा, दादी, इन सब के नाम आपने नीचे लिखने हैं और अपनी सरगर्मी को मुकम्मल करना है। तो जल्दी से इसको मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। किताब के इस सफ़े पर हमें ख़ानदान के बारे में बताया गया है। कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने देने हैं। आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? आपके वालिदैन का क्या नाम है? अपने बहन भाइयों के नाम बताएं। जी, तो जल्दी से इन सवालात के जवाब दीजिए और वापस आइए। यहाँ पे ख़ानदान का एक फ़्लैश कार्ड दिया गया है जिसमें अम्मी, बहन, भाई और अब्बू बैठे हुए हैं। इसको देखिए। जी, तो इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ख़ानदान के कुछ अफराद, वालिदैन, बहनों, भाइयों, दादा दादी, चचा चची, चचाजाद और मामूजाद वगैरह को पहचान सकें, जान सके कि ख़ानदान के तमाम अफराद और दोस्तों का एहतराम करना चाहिए। इन SLO से रिलेटेड तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम के लिए इस लेसन प्लान में दी गई है, जो कि टर्म 1 यूनिट 2 हफ़्ता 2 सबकी मंसूबा नंबर 3 है। तो आगे तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। ख़ानदान के अफराद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उनको देख लेते हैं। आपके ख़ानदान में दादा, दादी, वालिदैन, चाचा, चची और बहन भाई शामिल होते हैं। ख़ानदान के अफराद आपस में किस तरह रहते हैं? बड़ों का एहतराम करते हैं, बहन भाइयों से प्यार से पेश आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सरगर्मी का आगाज़ हो रहा है। देखते हैं। अपने ख़ानदान के लोगों की तस्वीरें इकट्ठी करें और एक चार्ट पर शजरा बनाएं। यहाँ पर आपको एक ये दरख्त दिया गया है, आपने कुछ तस्वीर इकट्ठी करनी है और उनको कट करके यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आपका ये शजरा मुकम्मल हो जाएगा। तो जल्दी से इसको मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। वीडियो के इस हिस्से में हफ़्ता 3 का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे टर्म 1 यूनिट 2 का हफ़्ता 3 का आगाज़ होता है, जिसमें 3 लेसन प्लान्स आएंगे और हर लेसन प्लान में हम एक एक SLO को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको 3 लेसन प्लान्स दिए गए हैं और असातिज़ा कराम की आसानी के लिए तमाम मेथडोलॉजी इनमें बता दी गई है। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने कुछ दोस्तों की अहम खूबियों के बारे में बयान कर सकें और इस SLO से रिलेटेड तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम के लिए
टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 सबकी मंसूबा नंबर 1 में दे दी गई है। तो आइए आगे सरगर्मी देखते हैं। अपने घर और स्कूल के दोस्तों सहेलियों की फहरिस्त बनाएं और उनकी खूबियाँ लिखें। यहाँ पर इस कॉलम में आपने अपने दोस्तों या सहेलियों के नाम लिखने हैं और इस कॉलम में आपने उनकी खूबियाँ लिखनी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वर्कशीट में अपना और अपने दोस्त या सहेली का नाम लिखें और रंग भरें। यहाँ पर आपने नाम लिखना है, अपना नाम, और वहाँ पे अपने दोस्त या सहेली का नाम लिखना है और इस तस्वीर में आपने रंग भरने हैं। दी हुई आदतों को गौर से पढ़ें। अपने दोस्त की अच्छी आदतों पर टिक और बुरी आदतों पर क्रॉस का निशान लगाएं। यहाँ पे कुछ आदतें लिखी हुई हैं। जो अच्छी आदत है उसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है और जो बुरी आदत है उसके आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। तो जल्दी से वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन चीज़ों कामों के बारे में बता सकें जो इनके वालिदैन माजी में आज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अंजाम देते थे। इस SLO की तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम की आसानी के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 सबकी मंसूबा नंबर 2 में दे दी गई है। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। माजी में लोगों का रहन सहन। माजी में लोगों का रहन सहन कैसा था, इस बारे में जानते हैं। बिजली की जगह दिए और मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। आज से पहले माजी में बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए सब लोग दियों और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। गाड़ियों के बजाय तांगों का इस्तेमाल किया जाता था। राब्ते के लिए खतूत का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि आज राब्ते के लिए मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लैश कार्ड माजी और हाल। कुछ फ़्लैश कार्ड दिए गए हैं जो कि माजी और हाल से रिलेटेड हैं। इनको देखिए और वापस आइए। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन चीज़ों कामों के बारे में बता सके जो इनके वालिदैन माजी में आज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अंजाम देते थे। इस SLO को कवर करने के लिए तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम की आसानी के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 सबकी मंसूबा नंबर 3 में दे दी गई है। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तलबा से इन कामों की फहरिस्त बनवाएं जो माजी में आज के मुकाबले में मुख्तलिफ़ किए जाते थे। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आएगा और काम जो माजी में आज के मुकाबले में मुख्तलिफ़ किए जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि माजी में ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। माजी में मोमबत्तियाँ और लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि हाल में हम ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि माजी में खतूत लिखे जाते थे अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए, जबकि आज की इस हाल में हम खतूत की बजाय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सरगर्मी आ रही है, अपने वालिदैन या दादा दादी का इंटरव्यू करें। इनसे पूछें कि इनके बचपन की ज़िंदगी आपके बचपन से किस तरह मुख्तलिफ थी। ये मालूमात अपने हम जमात साथियों को बताएं। इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए आपको अपने दादा और दादी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो जाइए उनका इंटरव्यू कीजिए और वापस आइए। वीडियो के इस हिस्से में हम चौथे हफ्ते का आगाज़ करते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता नंबर 4। इसमें हम 3 लेसन प्लान्स कवर करेंगे और हर लेसन प्लान में पहले लेसन प्लान में हम 2 SLOs कवर करेंगे, दूसरे लेसन प्लान में हम 4 SLOs कवर करेंगे, जबकि तीसरे लेसन प्लान में भी हम 4 SLOs कवर करेंगे। उसातिज़ा कराम की आसानी के लिए मेथडोलॉजी के साथ ये 3 लेसन प्लान दे दिए गए हैं। इससे उसातिज़ा कराम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन खेलों के नाम बता सकें जो इन्हें पसंद हैं। ग्रोही सरगर्मियों और खेलों में शिरकत करके ताउन की अहमियत जान सकें। इन SLO से रिलेटेड तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 सबकी मंसूबा नंबर 1 में दे दी गई है। सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबक नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 5 का उन्वान है खेल और असूल, और इस सबक में हम 6 SLOs को कवर करेंगे। तहरीकी सरगर्मी। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। तस्वीर देखकर दी हुई जगह में खेल का नाम बताएं। उससे पहले ये बताएं कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। यहाँ पर 4 खेल दिए गए हैं और लिखा हुआ है उछल कूद, रस्सी फैलांगना, फुटबॉल और दौड़। इन ऑप्शंस को आपने इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है। जल्दी से अपनी सरगर्मी मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। किताब के इस सफ़े पर हमें मुख्तलिफ़ खेलों के बारे में बताया गया है, जैसे कि खेलों में मौजूद है हॉकी, फुटबॉल,
बैडमिंटन और वॉलीबॉल। क्या इनमें से भी कोई खेल आपका पसंदीदा है? जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ खेल से रिलेटेड फ्लैश कार्ड दिए गए हैं, इनको देखिए और वापस आइए। इस सरगर्मी को देखते हैं। तस्वीर में नज़र आने वाले खेलों के नाम मोमे में तलाश करें। तो चलिए आपकी मदद के लिए एक खेल का नाम मैं तलाश कर देती हूँ। ये देखिए, फे, टे, बे, अलिफ, लाम, फुटबॉल। बाकी नाम आप खुद तलाश कीजिए और इसको मुकम्मल करके वापस आइए। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खेल के असूलों की वजाहत कर सकें, खेल के असूलों पर अमल करने की अहमियत जान सकें, खेल के असूलों पर अमल करने की अहमियत जान सकें, खेल के दौरान में खेल के असूलों का मुशाहिदा कर सकें, अच्छी सेहत के लिए खेल और वर्जिश की अहमियत जान सकें। इन तमाम एसएलओज़ को कवर करने के लिए तमाम मेथडोलॉजी असातिज़ा कराम की आसानी के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 सबकी मंसूबा नंबर 2 में दे दी गई है। तसव्वुरात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर खेल के कुछ असूल बताए होते हैं। हर खेल को खेलने के लिए कोई ना कोई असूल होता है। देखते हैं कौन कौन से असूल ज़रूरी होते हैं। हर खेल खेलते वक्त अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए, हार कबूल करनी चाहिए और अंपायर की बात सुननी चाहिए। इस सरगर्मी को देखते हैं। अपने दोस्तों के साथ कोई सा खेल खेलें, खेल खेलते हुए इसके असूलों पर अमल करें। तो जल्दी से इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। इस वर्कशीट को देखते हैं। दी गई तस्वीर को गौर से देखें और जिन तस्वीर में बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं उन पर टिक और जिनमें वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाएं। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमें खेलते वक्त भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से देखिए कि इसमें कौन से बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं, उन पे टिक का निशान लगाइए और जो मिलजुल कर नहीं खेल रहे उनमें क्रॉस का निशान लगाइए और इस वर्कशीट को मुकम्मल करके वापस आइए। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खेल के असूलों की वजाहत कर सकें, खेल के असूलों पर अमल करने की अहमियत जान सकें, खेल के दौरान में खेल के असूलों का मुशाहिदा कर सकें, अच्छी सेहत के लिए खेल और वर्जिश की अहमियत जान सकें। इन एसएलओज़ को कवर करने के लिए तमाम मेथडोलॉजी इस लेसन प्लान में दी गई है, जो कि टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 सबकी मंसूबा नंबर 3 में मौजूद है। तो सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। खेल के असूलों पर अमल करने की अहमियत। लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता है, हर कोई अपनी बारी ले सकता है, खेल अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। मज़ीद असूल पढ़ने के लिए आपको किताब में मतन दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ें और इसका मुशाहिदा करें। जी तो प्यारे बच्चों, खेल क्यों ज़रूरी हैं? खेल के असूलों पर अमल करने की क्या अहमियत है? खेलों के चंद उसूल बताएं। आप पीछे लेसन में पढ़ चुके हैं कि खेलों के क्या उसूल हैं, उनको जल्दी से रिवाइज़ करें और जल्दी से सरगर्मी की तरफ आइए। सरगर्मी देखते हैं। टेलीविज़न या कंप्यूटर पर अपना पसंदीदा खेल देखें। इस खेल के कम से कम 3 असूल दी हुई जगह में लिखें। खेल का नाम, असूल 1, असूल 2 और असूल 3। तो जल्दी से टेलीविज़न और कंप्यूटर को ऑन कीजिए और अपना पसंदीदा खेल देखिए और फिर उनके असूल को यहाँ पर दर्ज कीजिए। आज की इस वीडियो में हमने मालूमात आमा जमात अव्वल के तसव्वुरात की दोहराई की है। उम्मीद है आप सबको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।